story at this hour. The Chief Minister of Delhi is going to be spending the next 14 nights in Delhi's Tihar jail. A Delhi court has sent Arvind Kejriwal to 15 days judicial custody on a plea of the Enforcement Directorate, who are in fact examining or investigating the matter in connection with the Delhi liquor policy, which is now known as the alleged excise policy scam. ED in its application against the Delhi Chief Minister have spoken about the fact that he's been non-cooperative and has been giving false and contradictory statements, evidence during the course of the investigations. He's reportedly also evaded questions, isn't sharing the passcode of his phones, which has prompted the Enforcement Directorate to write to Apple saying that they need access to his phone to get a sense of what was brewing over the last 2 years or so. Also refusing to disclose passwords, the ED has said that this way the investigation can't be carried forward. Also, he's labelled his own party leaders as confused. Arvind Kejriwal claimed that Vijay Nair reported to Saurabh Bhardwaj and Atishi and not to him, and saying that his interaction with Vijay Nair, also behind bars, was actually limited. Ahead of his court appearance, while being asked a question on the opposition unity rally from yesterday, Arvind Kejriwal went on to say that whatever the Prime Minister is doing is not good for the nation, is detrimental for the nation. Remember, alongside Arvind Kejriwal, several other Aam Aadmi Party leaders are behind bars. Former Delhi Chief Minister Manish Sisodia is in jail. Sanjay Singh also in jail, Rajya Sabha MP from Aam. Jail number 5 is where Sanjay Singh is. Sisodia in jail number 1, Satyendra Jain in jail number 7, NBRS MLC K. Kavita in jail number 6 of the women's cell. A series of reactions that have been coming in. Let's take a listen. जी पूरा इंडिया गठबंधन के आपके लिए जुटा रामलीला मैदान क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट हेयरिंग जो है केजरीवाल जी की वो 15 अप्रैल रहेगी। तो अब जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि भी अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारी लीगल टीम डिस्कस करके उसके अकॉर्डिंगली आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तय करेंगे। बाकी ईडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट। पूरे देश में लगातार असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से विधायकों, सांसदों की खरीद फरोख्त करके, दबाव बना के, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अस्थिर करती रही है। He has also said that Vijay Nair, one of the accused, never reported to him. He reported to Atishi and Saurabh. So no, वो तो ठीक है। नहीं, वो तो राबड़ी देवी जी तैयार हो रही है। वो तो मैं तीन चार बार कह चुका पिछले एक हफ्ते 10 दिन में कि अब वो राबड़ी देवी जी आगे आएंगी, समझे ना? मेरा मतलब है मैडम सुनीता केजरीवाल आगे आएंगी। और इसको सिर्फ एक को नहीं, आप जो इसके बारे में बताओ, मुझे तो लग रहा है कि उनके सारे ही जो मंत्री थे, सारे ही उनके जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences. Now it raises certain moral and constitutional question. अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। अरविंद केजरीवाल दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाह रहे हैं तो वो गलत है। ये वही केजरीवाल हैं जिनके पूरे करियर का लॉन्च हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जो उन्होंने आवाज उठाई थी, खासतौर से रामलीला मैदान में, जिसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे को जिस तरह से इस्तेमाल किया वो हम सब जानते हैं। तो अब केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि पीएम जो भी कर रहे हैं गलत है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी देश के लिए अच्छे हैं। पूरे विश्व के अंदर भारत की न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की दुनिया शपथ लेती है और कानून अपना कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति व वंश या संगठन या पार्टी
कानून व इंस्टीट्यूशन से ऊपर नहीं है, नहीं है, नहीं है। लुटेरे, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजी करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत स्पष्ट साबित होता जा रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव लड़ने का काम किया है, इन लोगों में एक ऐसी माहौल हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, जहां जानते हैं दिल्ली में तो ये लोग सीट्स नहीं जीत पाएंगे। और ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर कर उनको जो हिरासत में रखा जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है और फिर से दिखाता है कि विपक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, इसलिए उनको या तो चुप कराने का काम कर रही है या उनको हिरासत में लेने का काम कर रही है।